Hey everyone, hope you are doing well. I'm Priya and I welcome you to my YouTube channel. So today's topic is a types of a polynomial. If you are a new viewer on this channel, so please watch my the previous videos of this topic. If it was the previous videos of this topic, so we'll understand the concept better. Okay, so let's begin with this topic, types of polynomial, which we have already done. Okay, the degree. Okay, if you see the types, not all entire concept we have done the half part, so we'll continue with that only. So this is a part 2. Okay, now if you'll see on screen here, I have done, remember in the previous video I have done half part, I mean we have done few sums based on that. So let's begin with this only. Okay, so polynomial based on a degree. Okay, we have done, if you remember, types of polynomial. How many types are there? Anyone? Yeah, so how many types of there? Two types were there. First was that is types of polynomial based on numbers. Remember we have done already. Okay, it's just a quick recap I'm just taking. अगर आप देखें तो हमने ऑलरेडी किया था बेस्ड ऑन नंबर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. जिसमें सिंगल टर्म हो उसे कहते हैं मोनोमियल, दो टर्म्स हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, दो टर्म्स को binomial. Correct? Now three term, if you observe here, three term, first term this one, second this, and third this one. Correct? So this is called trinomial. So we have already completed. Okay, now we'll go to the next, the second type. Okay, this is the first type. The first type was, I'm so sorry, the first type was types of polynomial. First type, that is based on number. Now we'll move ahead. Second type. सेकेंड टाइप इज बेस्ड ऑन डिग्री. सेकेंड टाइप क्या है? डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री. करेक्ट? ओके, तो हमने इसका कुछ सम्स किए हैं लीनियर. आई फिर रिमेंबर तो मैंने कराया था LQC. ओके, इनिशियल आपको याद रखना है. सो जिसमें पावर या डिग्री अगर आप 1 देखें तो क्या कहते हैं उसे? लीनियर. यहाँ पे अगर पावर, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टर्म, यहाँ पे पावर क्या दिया हुआ है? 2. करेक्ट? सो अगर जिस यहाँ पे पावर वेरिएबल के साथ जो पावर है अगर वो 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर अगर 2 होगा तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक. उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, वेरी गुड. ओके, नाउ थर्ड वन, द डिग्री. जिसमें हाईएस्ट डिग्री, जिसकी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के साथ हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, वो वहाँ पे क्या बन जाता है हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, सो LQC, I told you to remember this, LQC, हाईएस्ट बेस्ड ऑन डिग्री. तो डिग्री की बात करें, हाईएस्ट डिग्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाईएस्ट डिग्री हमें देख के बतानी है. हाईएस्ट डिग्री जहाँ पे 2 होगा तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, जहाँ पे 1 हो वहाँ पे हो जाएगा लीनियर. सो लाइक दिस यू हैव टू रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर द इनिशियल LQC. ओके, वेरी गुड. नाउ विल स्टार्ट नाउ बेस्ड, विल टेक फ्यू सम्स बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन डिग्री ओनली. ओके, सेकेंड टाइप्स को हम डिटेल स्टडी करेंगे. फर्स्ट टाइप को ऑलरेडी डिटेल स्टडी हो गया है बेस्ड ऑन नंबर्स. आज स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री. ओके, अच्छी तरह से सम सॉल्व करते हैं. सी, क्वेश्चन इज राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. ओके, क्वेश्चन है मोनोमियल विथ डिग्री 7. नाउ सी द टर्म, व्हाट इज रिटन? मोनोमियल. मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनोमियल का मतलब कितना टर्म्स होने चाहिए? मोनोमियल सिंगल टर्म. करेक्ट, वेरी गुड. मोनोमियल सिंगल, सिंगल टर्म विथ डिग्री 7. ओके, अगर मोनोमियल हमें लिखना है, ठीक है, मोनोमियल आप कुछ आप लिख सकते हैं x, यू कैन राइट y, सॉरी 5x, you can write any number, just you can write 10x, any number, any variable you can write. If we say variable, ma'am take y, a, b, c, any variable you can take. So let's see, if I am writing a, okay, just you can write a. So mono means what? Single. Any single term you have to take. Suppose I am taking x, suppose. So here monomial will be x and degree is 7. So I have to write like this, that it will become 7 raised to x, sorry, x raised to 7. What? So answer will come what? X raised to 7. Okay, clear?
सो मोनो मीन्स व्हाट, सिंगल, और डिग्री में हमें लिखना है, जो नंबर दिया रहे वो हमें सिर्फ लिख देना है, इतना सिंपल है ये सम. सो लेट्स सी, जस्ट अ मिनट, लेट मी, या सोल्यूशन क्या बन जाता है आप देख लें. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, आई मीन या वन टर्म इट इज. सी, सो यहाँ पे x लिया गया है, दैट इज x रेज टू 7. यू कैन टेक a रेज टू 7, ओके, और एल्स यू कैन टेक 5x रेज टू 7, ओके. ऐसे होते हैं मोनोमियल टर्म्स, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड है बाइनोमियल विथ डिग्री 35. बाइनोमियल क्या हो जाएगा? बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स. बाइनोमियल क्या हो जाना है? टू टर्म्स. सो टू टर्म्स कैसे लिखना है? उसे प्लस या माइनस साइन से हमें क्या करना होता है? सेपरेट करना होता है. मोनो मीन्स टू टर्म्स हो जाएगा, राइट. तो दो सिंगल टर्म्स हमें लिखने हैं. लाइक इफ आई एम राइटिंग अ 5x, then you can put your plus sign or minus sign, whatever, okay, but should be separated by plus or minus, okay. Now the next, suppose if I am writing 3, okay, any term you can write. So this is how many terms are there here? How many terms are here? 2, okay. So that is called what? Binomial. That is called binomial. So binomial with degree 35. Now degree I have to write, so I can write like this. Is that clear? Simple. Okay, so here let's see. Now we'll see here how we have to solve. See, okay, so binomial with degree 35. So binomial means two terms and degree 35, okay, correct. So you can take x raised to 35 means what is the term? X, right? And you can take just variable or else number with a variable. So this is also correct, this is also correct. Is that clear? Okay, so now we'll see the next sum. Let's see, let's begin with the next sum. Now trinomial with degree 8. Trinomial, how many terms are there? Trinomial 3, okay. Now let's see, trinomial means a 3 term, correct. Now let's see how we have to solve. Okay, the first term, that is 2x raised to degree. Can you see the degree? Degree is 8. Now the second term, you can take any number or variable. Okay, it's up to you what you want to write. Okay, that I hope that much you have understood it by seeing the previous videos. Okay, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है हमें कैसे लिखना है. ये वर्ड्स में दिया है और हमको उसको फॉर्म करना है, ठीक है. हमने फॉर्म कर लिया है, इजी है, काफ़ी इजी हो गया. ये प्रीवियस वीडियो पर बेस्ड सम्स थे, ठीक है. नाउ विल सी, राइट द अप्रोप्रिएट पोलिनोमियल इन द बॉक्सेस. लेट्स सी. ओके, वेरी नाइस, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक वेरी इजी एज वेल. ओके, हमें क्या करना है बच्चों? देखो ध्यान से देखिए, हमारे राइट साइड क्या है? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल. इट इज़ नथिंग बट व्हाट? विच टाइप्स कितने बताए थे मैंने आपको? दो टाइप्स होते हैं, बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन नंबर्स, राइट. सो आई मीन सो सॉरी, बेस्ड ऑन नंबर्स. ये हो गए क्या हमारे? बेस्ड ऑन नंबर्स हो गए. नंबर्स है ना ये, बेस्ड ऑन नंबर्स. यहाँ पे कितने नंबर मोनो बोलो तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं? मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, करेक्ट. नाउ द सेकेंड टाइप, दिस साइड, द सेकेंड टाइप वॉज based on what? Just now I told you what was that? Based on, yes, numbers based on degree, correct. That was a degree. So degree, so LQC I told, जहाँ डिग्री में आपको 1 दिखाई पड़े तो वहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? लीनियर, करेक्ट. और डिग्री में पावर में 2 दिखाई पड़े तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड 3 दिखाई पड़े तो क्यूबिक, करेक्ट. आई होप क्लियर दिस मच. सो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं. हाउ टू सॉल्व दिस. ओके, सो लेट्स सी. सो जो इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. बेस्ड ऑन व्हाट? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू बेस्ड ऑन डिग्री. और इफ यू सी दिस साइड, सो इट इज बेस्ड ऑन टर्म्स, correct. Based on terms मतलब numbers, based on numbers you can say. Okay, so let's see. चलिए
शुरुआत करते हैं ये साइड से। बच्चे आप सिर्फ रिलैक्स रहिए और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आपको काफ़ी जल्दी से और आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, आपसे समझते चलिए। सो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, यस, एल क्यू सी, क्यू से क्या हो जाता है वो सेकंड पे आता है ना, तो डिग्री में, पावर में हमें क्या देखना है, 2, हाईएस्ट पावर, बट मैंने बोला था हाईएस्ट पावर, रिमेंबर। तो चलिए, आपको कितने इक्वेशन है, अगर आप यहाँ पे देखें इस सर्कल में कितने एक्सप्रेशन लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने एक्सप्रेशन है, 6 एक्सप्रेशन है। तो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है और इस बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलो हम क्लासीफाई कर लेते हैं फटाफट से, काफ़ी सिंपल है। 6 एक्सप्रेशन दिए हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब क्या था, क्वाड्रेटिक 2, वेयर द पावर विल बी 2, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, लेट्स सी, डिग्री 2 हम बोल सकते हैं। चलिए, ओके, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ओके। चलिए, so you can see here second expression, that is x raised to 2, that is you can say x square, or here yes, and where the last one, very good। अब आपको डाउट होगा कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, बिकॉज मैंने बोला है हम जब पावर लेते हैं तो हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, बट अगर आप यहाँ पे टर्म देखें तो 2 से भी बड़ी वैल्यू आ गई है, 2 से भी ज़्यादा बड़ा पावर है 3 का, राइट, 2 से बड़ी वैल्यू आ गई ना, हाईएस्ट पावर 3 हो गई यहाँ पे, तो हमें 3 नहीं लेना है, हमें जहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 वही कंसिडर करना है, ठीक है। इसी वजह से ये एक्सप्रेशन को नहीं लिया जाएगा। तो कितने एक्सप्रेशन हो गए हमारे, 3 हो गए। चलिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर, सेकेंड एक्सप्रेशन इज, ओके, थर्ड एक्सप्रेशन इज 3x स्क्वायर। ओके, क्लियर, वेरी इजी, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या बनेगा, क्यूबिक के लिए डिग्री इज 3, ओके। सो आपको हाईएस्ट डिग्री जहाँ पे 3 दिखाई पड़े वो एक्सप्रेशन को बॉक्स में लिख देना है। अब कहाँ पे एक्सप्रेशन है, यू कैन सी हियर, करेक्ट, और कहीं हमें दिखाई दे रहा है, यस, आइडेंटिफाई, जस्ट सी, लुक एट हियर, यस, और कहीं नहीं। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यस, so क्या एक्सप्रेशंस हो गए हमारे पास, 2 एक्सप्रेशंस आ गए जहाँ पे डिग्री 3 आपको दिख रही है, ओके। सो लेट्स राइट नाउ दिस एक्सप्रेशन इन द बॉक्सेस, ओके। फर्स्ट वन, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, द लास्ट वन इज एक्स क्यूब प्लस 9, इजी, वेरी इजी, ओके। नाउ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मीन्स व्हाट, जहाँ पे डिग्री 1 हो, करेक्ट, डिग्री 1। चलिए फाइंड आउट डिग्री 1। नाउ इफ यू सी इन दिस x plus 7, nothing is given in the powers, what you have to consider here, you have to consider what, 1, correct, sorry. Now here, now the second one, let me erase this, yeah, so this will come, and what else, जहाँ पे पावर हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए तो वो आपको आइडेंटिफाई, कहीं और दिख रहा है, आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, नहीं, ओके। सो लेट्स सी नाउ, हाईएस्ट पावर जहाँ पे डिग्री 1 हो, ठीक है, दिख रही है, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन ही आता है यहाँ पे, तो वही हमें लिख देना है, दैट इज x प्लस 7। ईजी बच्चों, काफ़ी ईजी है, ओके ओके। चलिए अब आते हैं राइट हैंड साइड के साइड, हमें सॉल्व करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर्स, ओके, बेस्ड ऑन टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स कितने टर्म्स होने चाहिए, बाइनोमियल, आई हैव टोल्ड यू बाइनोमियल नथिंग बट हाउ मेनी टर्म्स, 2, कितने टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए, ओके। टर्म्स मैंने क्या बोला था, 2 टर्म्स, ओके। टर्म्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में करा दिया है, टर्म्स क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो टर्म्स, कितने टर्म्स हो गए, x 1 टर्म, 7 सेकेंड टर्म, 2 टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने टर्म्स है, एक ही टर्म है, एक ही दिख रहा है ना आपको, एक ही टर्म है, ठीक है। अब लास्ट में एक और एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, ये में इसमें, तो आप कितने टर्म्स देख सकते हैं यहाँ पे, 1, दिस वन, देन 2, देन 3 टर्म्स। तो कितने टर्म्स हो रहे हैं, टर्म समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा प्लस और माइनस साइन जो भी होता है उससे वो
सेपरेट किए जाते हैं टर्म्स, ठीक है। तो आप टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस साइन देख सकते हैं, ठीक है। सो वैसे ही हमको फाइंड आउट करना है और लिखना है टर्म्स। सो बेस्ड ऑन टर्म्स देखना है बायनोमियल जहाँ पे 2 टर्म्स हो, ठीक है। सो लेट्स सी 2 टर्म्स, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, आई थिंक यू कैन आंसर नाउ। सो व्हाट आंसर विल कम इन दिस, 2 टर्म्स मिल रहे हैं आपको, एनीवेयर एल्स यू कैन सी, एनीवेयर एल्स, यस वेरी गुड, ओके चलिए। सो विल राइट दिस एक्सप्रेशन इन द बॉक्सेस, okay. Now next is trinomial. Next is what? Trinomial. How many terms are there in trinomial? Yes children, how many? 3. Tri, tree is nothing but what? Tri means nothing but triangle or like that. So triangle, triangle. Similarly trinomial means 3, where the 3 terms will come, okay. Let's see 3 terms. चलिए बताइए 3 terms आपको कहाँ देख सकते हैं आप? यस चलिए स्टार्ट, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है एक्सप्रेशन, दिस वन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एनीवेयर एल्स यू कैन सी, नो, सो ओनली 1 एक्सप्रेशन विल गेट फ्रॉम दिस सर्कल, ओके। और फिर क्या बचता है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज अ मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स अ सिंगल टर्म, ठीक है। सो अब बताइए कहाँ पे आपको ऑब्जर्व कर सकते, कहाँ पे आपको सिंगल टर्म दिख रहा है? Yes, that is x square only, and anything else? Nothing is there. So we'll write x square. Simple children, very easy, right? So we have done that much. Now we'll see the next concept, okay. We have finished the types of polynomial. Types हमने दोनों कर ली हैं, डिटेल स्टडी हमने कर ली है टाइप्स की, दोनों टाइप्स, दैट इज बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। हमने दोनों स्टडी कर लिया डिटेल में। अब विल मूव अहेड, विल सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कन्वर्टिंग अ वर्ड प्रॉब्लम टू एक्सप्रेशन, ठीक है। जो भी वर्ड प्रॉब्लम है हम उसकी से एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, बट आई विल टेल यू व्हाट इज एक्सप्रेशन। लेट मी इरेज दिस, या एक्सप्रेशन इज नथिंग बट व्हाट, लाइक x plus b or 5x plus 2, when you are writing this terms, okay, when you are writing this term, okay, हम जब एक या सॉरी जब हम लिखते हैं 2 टर्म्स या 3 टर्म्स साथ में लिखे, ठीक है, साथ में हम जब लिखते हैं तो क्या बनता है वो एक्सप्रेशन, क्या बन जाता है एक्सप्रेशन। सिर्फ मैंने ये लिख दिया, ठीक है, x, तो क्या बन जाएगा वो हमारा टर्म। इफ आई विल राइट x प्लस 7, तो ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन। क्या बन जाता है जब एक से अधिक टर्म हो जाते हैं, एक से अधिक टर्म मिलते हैं तो क्या बन जाता है एक्सप्रेशन। और इन केस अदर एग्जाम्पल, इफ आई टेक, इफ आई एम राइटिंग हियर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये भी टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो 3 टर्म्स मिला के क्या बन गए यहाँ पे एक्सप्रेशन। 1, 2 और 3, आप ऐसे 4 टर्म्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं मिलके एक्सप्रेशन। और इन टर्म्स के बीच में आप कभी भी देखेंगे तो क्या हमें मिलता है प्लस और माइनस साइन, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। चलिए तो शुरुआत करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की, काफ़ी इजी तरीका है, ओके। Just a minute here, I think here, okay. Okay, now we'll see here. Question number 1, use the given letters to write the answers. अगर आप क्वेश्चंस देखें तो हमें यहाँ पे लेटर्स है, नंबर्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, बट यहाँ पे अगर वर्ड प्रॉब्लम देखें तो वर्ड प्रॉब्लम में नंबर्स नहीं हैं। सी हियर अल्फ़ाबेट से आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, देयर आर अ ट्री, लाइक नंबर ऑफ ट्रीज दे हैव मेंशन लाइक ए ओनली, देयर आर 8 trees in the village lot.
इफ़ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई बी, इंक्रीजेज, सी आप बच्चों ध्यान रखिए, इंक्रीज करने बोल रहे हैं राइट, तो इंक्रीज के लिए हमें प्लस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, इंक्रीज बाय एवरी ईयर बाय बी, देन हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी आफ्टर एक्स ईयर्स, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर्स, ओके, आफ्टर अ ईयर यू कैन से। सो कितने ईयर्स की बात करें वो हमें नहीं आइडिया, उन्होंने ऐसे नंबर्स में नहीं पूछा है, करेक्ट, नंबर्स नहीं दिया है। तो एक्सप्रेशन जो हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, जो भी हमें सॉल्व करना है उसका आंसर भी हमको सिर्फ और सिर्फ टर्म्स में ही लिखना है, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स में ही लिखना है, अल्फ़ाबेट्स यू कैन सी, बिकॉज क्वेश्चन ही अल्फ़ाबेट्स में दिए है, कैन सी ना, योर ए बी एंड एक्स, सी योर ए, ठीक है। So let's begin with this. चलिए, so number of trees in the village, how many number of trees in the village, correct, तो कितने ट्रीज हैं वहाँ पे विलेज में, कितने ट्रीज बताएं यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो कितने ट्रीज है, ए, नंबर्स नहीं दिया है, क्या दिया है, ए बोला है, ठीक है। तो लेट्स नाउ इफ ए इज गिवन सो विल राइट ए, ओके। नाउ द नेक्स्ट sentence is if the number of trees increases every year by b, increase हो रहा है, ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, ए है, और उसमें इंक्रीज हो जाता है, अगर लिखा जाए तो वी कैन राइट ए प्लस बी, राइट, बट हम इसको अच्छे से समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट को। तो पहले क्या दिया है, नंबर ऑफ ट्री इंक्रीज एवरी ईयर, ठीक है, इंक्रीज कितने से हो रहा है, बी से, मतलब अगर देखा जाए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया जाए, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज विल बी 5, एक एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल है, मैं नहीं बोल रही कि ये 5 है 10 है 15 है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। सो एक गांव में 5 ट्री हैं, ठीक है, और उसको एक साल के बाद नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेज, हर साल कितने से बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, मैंने ऐड कर लिया, सपोज बढ़ रहा है, इंक्रीजेज ना, हमको ऐड करना है ना, नेक्स्ट ईयर वो इंक्रीज हो जाएगा 2 ट्रीज से, सपोज 2, मैंने सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल लिया है, ये 2 ट्री से एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर, ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को। 5 ट्री है गांव में और बोल रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है बाई बी, तो मैंने एग्जाम्पल में लिया है यहाँ पे 5 ट्रीज हैं और इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर बाई 2 नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। सो वेट, या इंक्रीज हो रहा है, तो हमें नंबर ऑफ हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर विल बी आफ्टर एक्स ईयर्स के लिए हमको फाइंड आउट करना है, तो उसको समझते हैं कैसे करेंगे फाइंड आउट, ठीक है। सो आफ्टर ईयर यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, 5 + 2, डोंट से 7 एंड ऑल, बट वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड 5 + 2, उसे बोला है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। सो 5 ट्री तो ऑलरेडी है, ठीक है, हमें +1 नेक्स्ट ईयर के लिए हमें फाइंड आउट करना, राइट, 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर के लिए 1 ईयर में कितने ट्रीज बढ़ जा रहे हैं, सपोज 1 ईयर के हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर में कितने ट्रीज बढ़ जाएंगे, कितने ट्रीज बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे, इंक्रीजेज बाई 2, जैसे एन एग्जाम्पल, इंक्रीजेज बाई 2, करेक्ट, ओके। अगर आप इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं 2 × 1 = 2, तो कितना बन जाता है, यहाँ पे भी 5 हो जाता है और यहाँ पे भी 2 हो जाता है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ भी 7 आंसर आएगा और यहाँ भी 7 आएगा, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट सेइंग, करेक्ट, ओके। तो चलिए, अगर हम 1 ईयर के लिए नंबर ऑफ ट्रीज देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो अगर हम लेते हैं 2 ईयर के लिए, ठीक है, 2 ईयर के लिए, तो कितना बन जाता है, विल सी दैट, या ओके। 2 ईयर के लिए देखा तो अगेन इट इज़ इंक्रीज्ड बाई 2, फिर अगर वापस में 3 ईयर्स के लिए देखूँ तो अगेन 2 ट्रीज हो जाएंगे, करेक्ट, it will increase every year, right, the two trees will increase every year, just an example, okay. So let's see here in this, after 2 years की बात कर रहे हैं, so 5 trees तो ऑलरेडी गांव में लगे हैं और इंक्रीज हो रहा है वो 2 से,
सो इसका क्या मतलब हो जाएगा, और एक और ईयर की बात करें क्योंकि हम यहाँ पे 2 ईयर की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाना है, और 2 ट्रीज बढ़ जा रही है, ठीक है, 5 है 2 है 2 है, करेक्ट। सो वैसे ही ईयर में हम लिख देते हैं, अगर ईयर की बात करते हैं, सो 2 × 2 हो जाएगा, करेक्ट। सो दैट इज नथिंग बट अगेन इट विल बिकम राइट हैंड साइड to the left hand side. Okay, you can calculate and you can see the answer now. So like that for third year also we can calculate. Okay, 3 years के लिए बताया गया है. Again it will be like 5 plus 2 plus 2 plus 2. Yes, I think आपको ये concept काफ़ी clear है. Okay, very easy. Okay, so I'm showing you this बाई पिक्चर, सो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा समझने के लिए. ओके, देखिए अभी नाउ 5 प्लस, नाउ हियर हम थर्ड ईयर के लिए बात कर रहे हैं, करेक्ट, थर्ड ईयर के लिए. अगेन थर्ड ईयर में 2 ट्रीज इंक्रीज हो रही है, मल्टीप्लाई विद दैट, क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन. हो ब्रैकेट दिया है, क्या मतलब हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन. सो अगेन इफ विल सॉल्व दिस राइट हैंड साइड, कितना हो जाता है अगर सॉल्व करते, 3 × 2, दैट इज 3 × 2 = 6, 6 + 5 11. सो हमें आंसर यहाँ पे 11 मिलता, और इसको एडिशन करने पे अगेन वी आर गेटिंग 11. सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड. समझ में आ रही है आप लोगों को बातें? ये एक एग्जाम्पल था, बट आपको समझ, आई होप आपको समझ में आ गया हो. तो चलिए देखते से वर्ड प्रॉब्लम है तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, ठीक है. Let me clear this slide. So हमने क्या किया था यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें फाइंड आउट करना था, करेक्ट. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या फाइंड आउट किया हमने, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे फाइंड आउट किया हमने, क्या मेथड यूज़ किया, नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज यही आ रहा है, नंबर ऑफ ट्रीज हमने लिया था, नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज. उसके बाद हमने क्या किया, ईयर, ठीक है ना, जो ईयर था वो हमने फाइंड से मल्टीप्लिकेशन कर दिया था. सो नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई विथ इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ ट्रीज, कितने से वो इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है. सो एक यहाँ पे फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव करने के लिए ही ये एग्जाम्पल लिया गया था. ओके, नॉट अ फॉर्मूला बट जस्ट अ पैटर्न टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे बेसिकली अगर आप फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर x ईयर्स फाइंड आउट करना है. आफ्टर x ईयर्स कितना हो जाना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज करंट में, अभी इस सिचुएशन में कितने हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए कितने ट्रीज हैं वो लिखनी है, प्लस नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स अगर आप देखें दैट द ट्रीज विल बी इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय b, ठीक है. उसी को बस सिंपली लिख लेना है हमें. चलिए, नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज a, नंबर ऑफ ईयर्स कितने बोले थे वहाँ पे इन्होंने, नंबर ऑफ ईयर्स विल बी, हाउ मेनी ईयर्स आर देयर, देयर इज x ईयर्स, यू कैन सी हियर x ईयर्स फाइंड आउट करना ना हमें, x ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स. देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ ट्रीज, कितने से इंक्रीज हो जा रहा है, वर्ड इंक्रीज दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंक्रीज कितने से इंक्रीज हुआ, b से इंक्रीज हुआ, ठीक है. तो हमारा क्या बन जाता है, हमको क्या लिखना था यहाँ पे, एक्सप्रेशन. तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a + xb. इज दैट क्लियर. सो क्या एक्सप्रेशन हमें मिलता है, a + xb. सो नंबर ऑफ ट्रीज विल बी a + xb. Now we'll see the next one. Read the question. Sorry. Now, first question is, for the parade, there are Y students in each row, and X such row are formed. Then how many students are there for the parade in all?
So we'll understand the question first. So number of students in each row, कितने हैं, कितने मेंशन किए हैं यहाँ पे, y. Number of students in each row is are y, and the next is the number of rows. How many rows are there? You can see how many rows, how many, yes, just look at the question here. How many are there? X, correct? Understood? Okay, so number of students in each row y and number of row x. Now what we have to find out, that then how many students are there for the parade in all. How many students, okay, हमें स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करें कितने स्टूडेंट्स हैं परेड में. ओके, मीन्स नथिंग बट हमको एक्सप्रेशन में ही लिखना है, बट जस्ट सी हाउ टू राइट. एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम एक जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसकी फिर हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की. ठीक है, चलिए. The example है, suppose the number of students in each row. Okay, let's see. Students in each row. यहाँ पे दिया है. If you see the row 1, this one is row 1 and this is row 2. Okay, so इस row में कितने students हैं? 3. And the second row में कितने students हैं? 3. तो हम फर्स्ट रो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे आप वो देखिए. स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हैं? ईच रो मतलब हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स हो गए? 3 हो गए. और ऐसे कितने रो हैं? रोज अगर देखे जाए तो कितने हो गए यहाँ पे? 1 and 2. कितने हैं? 2 रोज है. ठीक है ना. और टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं? टोटल स्टूडेंट्स मिला के बताइए कितने हो जाएंगे? 6 हो रहे. क्या किया आपने? बेसिकली आपने क्या किया? 3 × 2 रो, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स इन ईच रो. करेक्ट, आपने यही किया. करेक्ट. तो कितने स्टूडेंट्स बन गए हमारे? 6. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. नाउ सपोज स्टूडेंट्स इन ईच रो. पहले देखते हैं कितने रोज बन रहे हैं. रो 1, रो 2, रो 3 एंड 4. कितने रोज हो गए? नंबर ऑफ रोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, नंबर ऑफ रोज कितने हो जाते हैं हमारे? 4 हो जाते हैं. करेक्ट. स्टूडेंट्स इन ईच रो, स्टूडेंट्स की बात करें. अब आप बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स इन ईच रो? ईच रो, इस रो में कितने हो गए? 2 हो गए. यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी देखें तो 2 हैं. ठीक है, तो ईच रो में कितने स्टूडेंट्स होते हैं हमारे? 2 बन जा रहे हैं. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड डाउन. यस, हमें याद है 4 2 = 8. क्या आप क्या कर रहे हैं? सिंपल सी चीज़, आप मल्टीप्लाई करें इन दो चीज़ों को. चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया गया है. सो स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हो गए? 2 हो गए. यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं. ठीक है. और नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ रोज. कितने हो गए नंबर ऑफ रोज? 1 2 3 4. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बन जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट विल बी हमें याद है. तो हमने क्या किया यहाँ पे? मल्टीप्लाई. दिख रहा है आप लोगों को? मैंने वही जस्ट बोला. ओके, so multiplication of these two, the students in each row and number of rows, it becomes what? We are getting total students. Okay, yes, so use this only, and by using this expression we'll get, okay, we'll get the answer. Now if we'll see here total number of students, that only we have to find out. Correct. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर परेड इन ऑल. राइट, यही क्वेश्चन पूछा गया है. कितने स्टूडेंट्स हैं उसको ही फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? ये वैल्यू को यूज़ करना है. यहाँ पे जो भी हमने यूज़ किया है एग्जाम्पल के थ्रू, उसे बाय यूजिंग दैट ओनली विल गेट द आंसर. ओके, तो चलिए, तो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? ये इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन कर दिया है. That only we have tried. So number of rows multiply. Now tell me, multiply what? Multiplication of this students in each row. Students in each row. Correct? ठीक है. हमें जो टेबल में वैल्यू दिया है वो नहीं लिखना है. ये एग्जाम्पल था, एक जस्ट एग्जाम्पल था. ठीक है, कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इसके लिए कॉन्सेप्ट ये टेबल बनाया गया था, ये एग्जाम्पल्स दिया गया था. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? नंबर ऑफ रोज कितने बन जाते हैं? चलिए क्या है?
x हो जाता है एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, कितने हैं ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया गया था, y है, कितने हैं y, मल्टीप्लाई विथ y। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए x इंटू वाई, कितने x इंटू वाई, नथिंग बट यू कैन राइट x y और x इंटू वाई, बोथ आर करेक्ट, this one or this one, you can add anyone. See the number of students will be x y. Okay, I hope you got the answer now. तो चलिए अभी नेक्स्ट सम लेते हैं. ओके so question is the tens and unit place of 2-digit number is m and n respectively. Write the polynomial which represent the 2-digit number. हमें 2 डिजिट्स के नंबर फाइंड आउट करने. अब 2 डिजिट्स में कैसे क्या आएगा वो हमें देखना है. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखिए तो टेंस और यूनिट प्लेस की बात की गई है. ठीक है, आपने ऑलरेडी आई थिंक हम प्राइमरी स्टैंडर्ड से करते हैं, प्राइमरी क्लास से करते हैं, तो टेंस और यूनिट प्लेस क्या होता है. तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, चलिए देखते हैं. यूनिट और टेंस प्लेस की बात करते हैं और 2 डिजिट्स हैं इसमें. ठीक है, सो डिजिट्स इन टेंस प्लेस. अगर टेंस के प्लेस पे हो तो हमें सिंपल सी बात है बच्चे, हमें मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ 10. और यूनिट प्लेस पे है तो वो नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है विथ 1. करेक्ट, सिंपल सा. ये तो बेसिक चीज़ है जो आपको पता ही होगी. तो चलिए देखते हैं डिजिट्स इन टेंस प्लेस. क्या है डिजिट्स, क्या दी गई है, टेंस पे m दिया गया है और यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस देखें तो इसके लिए n रिस्पेक्टिवली. सो डिजिट्स इन टेंस प्लेस m एंड यूनिट प्लेस पर n बनता है. ठीक है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन. ओके, नाउ राइट द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट द 2 डिजिट नंबर. हमें 2 डिजिट्स फाइंड आउट करनी. अब कैसे, डोंट राइट m एन डायरेक्टली. ओके, हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते वो देखते हैं. क्यों, बिकॉज हमें टेंस का प्लेस देखना है. ठीक है, टेंस का प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स. सपोज एक नंबर लिया है 35 में आप बताइए यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है और टेंस के प्लेस पे यूनिट प्लेस पे क्या है. यस, वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस. वेरी गुड. सो 5 इज अ यूनिट प्लेस, इज ऑन द यूनिट प्लेस एंड 3 कहाँ पे है, टेंस के प्लेस पे. तो अगर मैंने 3 को बोला है कि टेंस के प्लेस पे है तो क्या होगा, अगर हम सिंप्लीफाई भी करें, अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं सो 35 को सिंप्लीफाई करने पे कैन आई राइट लाइक दिस, 30 + 5 इट बिकम 35. करेक्ट, ईजी है ना. और इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, फिर हम यूनिट और टेंस की बात करें तो इसका क्या हो जाता है, इट इज़ 3 मल्टीप्लाई विथ 10 बिकॉज दैट इज़ टेंस प्लेस. अगर हम यूनिट और टेंस की बात करें तो, और 5 क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1. तो टेंस का जो वैल्यू था हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था 1 पे मैं कह रही हूँ, बट आंसर क्या है 30 + 5 बोले तो 35 ना, बोले यहाँ पे तो क्या बन जा रहा है 35. तो चलिए देखते हैं इसको यहाँ पे. सो 330 10 इंटू 3 क्यों किया गया है, 10 इंटू 3 करेंगे दैट इज 10 3 इट बिकम व्हाट, 10 3 30. करेक्ट, ओके 30 और 5 के लिए क्या आ गया 1 इंटू 5 30 एंड 5. यहाँ पे 30 हो जा रहा है और यहाँ पे बन जाता है 5. ठीक है, तो क्या कर दिया है यहाँ पे यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस आप देख सकते हैं. तो क्या बन जा रहा है हमारा, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस लेते ही 35. करेक्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर मैंने टर्म्स लिख दिया है एंड दैट इज यूनिट प्लेस पे, अगर हम यही सम्स को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं. ठीक है, सी एन को लिया है यूनिट प्लेस पे. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि एन कहाँ पे होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे, और एम कहाँ पर होना चाहिए, टेंस की प्लेस पे. करेक्ट, तो हमने जस्ट वही लिखा है, एन कहाँ पे यूनिट प्लेस पे और एम यू कैन सी हियर ऑन टेंस प्लेस. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए बाय दिस सो व्हाट वी हैव टू डू इज सी 10 मल्टीप्लाई व्हाट, मल्टीप्लाई ऑफ
नंबर तो नहीं है ना, क्या है नंबर यहाँ पे नहीं है तो क्या दिया हुआ है, क्या वैल्यू क्या है यहाँ पे, टेंस की वैल्यू बेस्ड ऑन क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन टेंस की वैल्यू है m, so we have to multiply with m. Clear? Okay, now next is we have to, that is unit place, अगर फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई विथ 1. तो क्या बन जाता है बताइए, क्या टर्म स्पेसिफिक, वो 2 डिजिट्स का टर्म क्या होगा, 2 डिजिट्स क्या होंगे हमारे, that is 10 multiply m become 10m, correct? Now plus 1 into n nothing but what, it become plus n. easy, काफ़ी ईजी है, आपको समझ में आएगा. तो हमारा यहाँ पे जो आंसर बनेगा that is 2 digit number will be, let's say the 2 digit number will be what, that you have already found out, that is a 10m plus n. easy बच्चों, काफ़ी ईजी रहा आज का सेशन, करेक्ट. तो बस आप प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो, so please like and subscribe this channel. Thank you and keep learning and keep supporting.